Okay, students, exercise 7.3 we were discussing. Exercise 7.3 का 16th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. The 16th question is integral tangent raised power 4x. Integral tangent raised power 4x dx. इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं tangent square x into tangent square x dx. And after that we can write it like tangent square x और एक जो टेंजेंट स्क्वायर x है इसको हम लोग लिख लेते हैं secant square x minus 1 into dx. अब इसके बाद ये टेंजेंट स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर x into secant square x dx minus इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर x dx. टेंजेंट स्क्वायर x को हम लोग ने इसलिए सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिखा है क्योंकि एक सीकेंट स्क्वायर x इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा देन दिस विल बिकम द फॉर्म इंटीग्रल fx रेज्ड पावर n dx इनटू f डैश x. चेक कीजिए जरा यहाँ पे टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है और इधर टेंजेंट स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग इसको दोबारा से लिखेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल tangent square x into secant square x dx माइनस अब दोबारा से यहाँ टेंजेंट स्क्वायर x को लिखते हैं secant square x minus 1 into dx क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं पढ़ा लेकिन secant square x के इंटीग्रल का फार्मूला वी हैव लर्न. अब यहाँ पे fx रेज़ पावर n dx into f dash x का यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है देखिए बेटा. This will be tangent cube x over x. चेक कीजिए इसका फॉर्मूला था हमारे पास fx raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c. अब इसके बाद secant square x का इंटीग्रल लगाते हैं that will become equals to minus tangent x और उसके बाद ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल हमारे पास होता है plus x plus c and this will be your answer for this question. 17th question is integral sine cube x plus cos cube x divided by sine square x into cos square x. Sine square x into cos square x dx. अब बेटा जी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे. It will be written as sine cube x over sine square x into cos square x dx plus integral cos cube x over sine square x into cos square x dx. ये sin square x sin cube x के साथ कट जाएगा and this will be left with sin x over बेटा जो ये cos square x है इसको हम लोग cos x into cos x लिख सकते हैं dx. Similarly in the next step ये जो cos square x है cos cube x के साथ कट जाएगा and it will be written as cos x over sin x into sin x dx. Now this sin x over cos x will become tangent x or 1 over cos x will become secant x. So it will become secant x into tangent x dx plus similarly जो ये second one है it will become integral cosecant x into cotangent x dx और इन दोनों का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है. सो secant x tangent x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा secant x और cosecant x cotangent x का इंटीग्रल है माइनस cosecant x plus c and this will be your answer for this question. देखिए 18th question is integral cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. Cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx. अब cos 2x का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है 1 minus 2 sin square x plus 2 sin square x. ये जो फॉर्मूला लगाया है पहला 1 minus 2 sin square x that is the formula of cos 2x divided by cos square x dx. अब ये प्लस का 2 sin square x और माइनस का 2 sin square x कैंसिल आउट हो जाएगा. So it will become equals to integral 1 over
cos square x dx, और 1 over cos square x हमारे पास बनता है secant square x dx, and we know that the integral of secant square x is tangent x, so it will be tangent x plus c, and this is your answer for this question. बेटा ये c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लिखना कंपलसरी होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में, अदरवाइज योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड फॉर दिस थिंग. ओके, now next question in this exercise is 1 over sin x into cos cube x. important question है ये, आप लोगों के लिए 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. इसमें फर्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, CTM कमिट टू मेमोरी. फर्स्ट स्टेप है डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide by cos x, multiply and divide by cos x in denominator. डिनोमिनेटर में हम लोगों ने cos x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. चेक कीजिए, ये हमारे पास बनेगा sin x over cos x, और जो ये cos cube x है, this will become cos raised to power 4x into dx. अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज 1 over cos raised to power 4x कैन बी रिटन एज secant raised to power 4x, और जो ये sin x over cos x है, इसको मैं tangent x लिख रहा हूं. नाउ अगेन न्यूमरेटर में जो secant raised to power 4x है, इसको मैं लिख रहा हूं secant square x into secant square x divided by tangent x dx, और ऊपर एक secant square x को मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल 1 plus tangent square x into secant square x divided by tangent x into dx. एक secant square x को मैं 1 plus tangent square x लिख रहा हूं. 10th क्लास की आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे put tangent x is equals to t. अब हम लोग वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहे हैं. put tangent x is equals to t, so it implies secant square x dx is equals to dt, differentiating both side. अब जब ये secant square x dx is equals to dt बन गया, तो बेटा जी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ये इंटीग्रल है, जो secant square x into dx लिखा है, इसकी जगह पे हम लोग dt लिख देंगे, और जो बाकी इंटीग्रेशन हमारे पास बचा है, it implies ये हमारे पास बचता है 1 plus t square over t into dt, क्योंकि tangent x को हम लोगों ने t पुट कर दिया था. अब इसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 by t dt प्लस इंटीग्रल t square by t dt. नाउ दिस t square by t ये कैंसल आउट हो गए, हमारे पास बचता है 1 by t dt प्लस इंटीग्रल t dt, और 1 by t का इंटीग्रल वी हैव लर्न्ड इज log mod t, सो इट विल बी log mod t प्लस t का इंटीग्रल यहाँ पे x रेज़ पर n का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज x रेज़ पर n plus 1 over n plus 1, तो ये हो जाएगा t रेज़ पर 2 over 2 plus c, एंड आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोगों ने t की वैल्यू वापस भी पुट करनी है, सो इट कैन बी रिटन एज log mod tangent x plus tangent square x over 2 plus c, which is your answer for this question. 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 20th क्वेश्चन के लिए बेटा जी क्या करना है कि जो न्यूमरेटर वाला cos 2x है, वहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला लगा देना है cos square x minus sin square x. cos 2x का हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है cos square x minus sin square x. सो 20th क्वेश्चन में आप cos square x minus sin square x लगा दोगे, और उसके बाद न्यूमरेटर में a square minus b square का फॉर्मूला लगा देना है, और जब आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, एक टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट जाएगी, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास डिनोमिनेटर में लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा, या डिनोमिनेटर वाली टर्म को t पुट कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा. अब हम लोग बात करते हैं 21st क्वेश्चन की, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx. इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx. साइन इनवर्स का हम लोगों ने अभी तक इंटीग्रल नहीं पढ़ा है, सो हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे. देखिए यहाँ पे वी नो दैट कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमारे पास पाई बाय 2 होता है,
तो मैं बात करता हूं साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। सो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये इंटेग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेग्रल π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स dx। चेक कीजिए, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर लेना है हम लोगों ने। साइन इनवर्स को हम लोग π/2 माइनस कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे x की जगह cos x है तो x की जगह पे cos x लिखेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल π/2 माइनस x dx। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि cos इनवर्स x जो है cos x के बराबर होता है प्रोवाइडेड that x lies in the principal value branch। और यहाँ पे हम लोगों को कोई कंडीशन नहीं गिवन है, सो वी विल कंसीडर दैट कि cos x जो है वो x उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, दैट इज व्हाई cos इनवर्स जो है cos x इज इक्वल्स टू x। अब इसके बाद इंटीग्रल करना है तो सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूला लगाने हैं, π/2 dx माइनस x dx, और π/2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर जा सकता है, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी π/2 x। क्योंकि π/2 जब बाहर चला जाएगा तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 into dx, और 1 का इंटीग्रेशन वी हैव लर्नड दैट इज इक्वल्स टू x होता है, और जो ये x है इट विल बी x² 2 प्लस c, क्योंकि x के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे x रेज़ पर n का। सो योर आंसर विल बी π/2x माइनस x² 2 प्लस c। नाउ दिस 22nd क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22nd क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 ओवर cos x minus a into cos x minus b dx। बेटा ये क्वेश्चन ना दो तरह से आता है, एक आता है हमारे पास cos x minus a cos x minus b, और एक हमारे पास आ जाता है कि डिनोमिनेटर में cos x minus a sin x minus b वगैरह की फॉर्म में होता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों बार cos x minus a x minus b है, तो एक चीज पहला स्टेप याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ b माइनस a। साइन ऑफ b माइनस a के साथ कर सकते हैं, या हम लोग इसको साइन ऑफ a माइनस b के साथ भी कर सकते हैं। साइन ऑफ b माइनस a क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, सो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ये बाहर आ जाएगा साइन ऑफ b माइनस a, और अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ b माइनस a ओवर कॉस ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस b dx। अभी मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास cos x माइनस a cos x माइनस b है, या cos x माइनस a इंटू साइन x माइनस b आ जाता है, मतलब एक cos की टर्म आती है एक साइन की टर्म आती है। तो बेटा एक बार याद रखिएगा, अगर दोनों cos की टर्म है या दोनों साइन की टर्म है तो आप लोगों ने साइन ऑफ b माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके पास एक साइन की टर्म और एक cos की टर्म है तो आप लोगों ने cos a माइनस b और cos a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आइदर cos a माइनस b हो जाएगा या cos b माइनस a। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों cos की टर्म है या दोनों साइन की टर्म है तो आप लोगों ने sin b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लेकिन अगर दोनों में से एक टर्म साइन की और एक टर्म cos की है तो आप लोगों ने cos ऑफ b माइनस a cos ऑफ b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से याद रखने वाला है, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CTM, this is equals to 1 over sin b minus a into sin of, बेटा अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूं मैं, b minus x plus x minus a over cos of x minus a into cos of x minus b dx। x ऐड कर दिया एंगल में ही और x सब्ट्रैक्ट कर दिया इसी एंगल में। Now this will become 1 over sin b minus a integral sin of, ये टर्म पहले लिख लेते हैं x minus a, और जो बाकी की टर्म है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं माइनस ऑफ x minus b। चेक कीजिएगा, सिर्फ एंगल में मैंने ऐसे किया, पहले x minus a को पहले लिख लिया, उसके बाद b माइनस x में से माइनस का साइन कॉमन निकाला तो ये x minus b बचता है, डिवाइडेड बाय
cos of x minus a into cos of x minus b into dx। अब बेटा जी न्यूमरेटर में हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। इट विल बिकम साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b। So this thing will become equals to 1 by sin b minus a integral sin a minus b का फॉर्मूला है। It will be sin a cos b minus cos a sin b divided by cos a cos b, that is cos x minus a cos x minus b into dx। sin x minus a sin x minus cos x minus b minus cos into sin of a minus b का फार्मूला लगाया। इसके बाद ये डिनोमिनेटर ये दोनों टर्मों के नीचे अलग अलग करके लिख लेना है। और जब ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ b माइनस ए इंटेग्रल, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसके नीचे ये टर्म लिखेंगे तो ये साइन x माइनस ए और cos x माइनस ए विल बिकम टेंजेंट ऑफ x माइनस ए और ये cos x माइनस b कट जाएगा। अब दूसरी ब्रैकेट माइनस cos x माइनस ए कट जाएगा, बाकी बचेगा sin x माइनस बी और cos x माइनस बी विल बिकम टेंजेंट ऑफ x माइनस b into dx। Tangent x minus a minus tangent x minus b into dx, and this will become equals to हाँ जी 1 over sin b minus a। अब टेंजेंट x माइनस a या टेंजेंट x का फॉर्मूला वी हैव लर्न माइनस ऑफ log cos x या log secant x हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है जी। सो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं माइनस log x cos x माइनस a और इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log cos x माइनस b और यहाँ पे मॉडुलस का साइन हम लोग लगा देंगे प्लस c हो जाएगा और दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन b माइनस a। अब log का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं log m माइनस log n। log m माइनस log n होता है log ऑफ m ओवर n। सो ये आ जाएगा cos x माइनस b ओवर cos x minus a plus c, which will be your answer for this question, and this question is quite important for 4 marks, ठीक है जी। is integral 1 over x square minus a square dx। 1 over x square minus a square dx, its answer is 1 by 2a log mod x minus a over x plus a plus c। और बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। You need to have the coefficient of x as 1, otherwise फिर आपको पहले कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बाकी बात होगी। Second formula is integral 1 over a square minus x square dx, and its answer is 1 by 2a log mod a plus x over a minus x plus c। Then third formula, ये third formula हम लोग already पढ़ चुके हैं 1 over x square plus a square dx, and this is 1 by a tangent inverse x over a plus c। Next fourth formula integral 1 over under root of x square minus a square dx, this will be equals to log mod x plus under root of x square minus a square plus c। फिफ्थ फॉर्मूला ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 over under root of a square minus x square dx। 1 over a square minus x square dx is sin inverse x over a plus c। स्टार्टिंग में जब मैंने फॉर्मूला लिखाए थे तब हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था। एंड सिक्स्थ फॉर्मूला इज इंटीग्रल 1 over under root of x square plus a square, and its formula dx is equals to
log mod x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। 6 फॉर्मूले ये हैं जो हम लोगों ने अब एक बात आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दूं रिगार्डिंग दीज फॉर्मूले कि ये फॉर्मूले एज इट इज क्वेश्चंस हम लोगों को नहीं आते हैं। हम लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें पहली टाइप होती है इंटीग्रल 1/ax² प्लस bx प्लस c dx की फॉर्म में आती है, या दूसरी टाइप हमारे पास आती है इंटीग्रल 1/√of ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आती है। थर्ड टाइप हमारे पास होती है इंटीग्रल px प्लस q ओवर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। एंड सिमिलरली फोर्थ टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज px प्लस q ओवर अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अगर ये फॉर्मूले डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन बने हुए हों, डायरेक्ट अगर हमारे पास इस फॉर्म में फॉर्मूला हो तो 1 मार्क में क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर हम लोगों को ये टाइप की फॉर्म की इक्वेशंस दी हुई होंगी तो हमारे पास जो इन फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो आइदर 4 मार्क्स में होता है या 6 मार्क्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 और 2 मार्क्स, लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशंस की फॉर्म में हम लोगों को गिवन होगा देन क्वेश्चन विल कम इन द फॉर्म ऑफ 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। अंडरस्टैंड? अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड टाइप की फॉर्म में आता है ax² प्लस bx प्लस c या अंडर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, तो एक बात बता दूं कि इस तरह के फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए। याद है 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर? वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करते थे, उसके बाद फिर एक कांस्टेंट हम लोग प्लस माइनस करते थे दैट इज हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर कर देते थे, तो वही चीज ऐड करनी, वही चीज सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टाइप के क्वेश्चन जब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो इन 6 फॉर्मूले में से कोई भी बन जाता है। अगर विदाउट स्क्वायर हो तो आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, और अगर स्क्वायर रूट वाली फॉर्म हो तो हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ फॉर्म में बनती है अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है। और अगर हमारे पास px प्लस क्यू ओवर की फॉर्म में आता है, ये देखिए नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है देन व्हाट यू नीड टू डू। अब इसको देखिएगा किस तरह से करना है। अगर हमारे पास थर्ड और फोर्थ टाइप की इक्वेशंस आती हैं जिसमें न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन व्हाट यू नीड टू डू, आपने क्या करना है, पुट न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर क्या था px प्लस q, इसको हम लोगों ने क्या करना है, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b कर देना है। मतलब क्या है कि आपने पुट कर देना है px प्लस q इज इक्वल्स टू a टाइम, अब ax का डेरिवेटिव 2ax प्लस b बचता है और प्लस b। आई एम टॉकिंग हियर ओनली द जनरल पॉलिनोमियल्स हियर। अगर पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आती है और न्यूमरेटर में आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल पड़ी हो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल पड़ी है तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल को a टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b एज इट इज। अब इसके बाद क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x, पहला पार्ट, और उसके बाद दूसरा कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे पहली बार आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और दूसरी बार आप लोगों ने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, और वहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी। और जब a और b की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास जो इंटीग्रल बनेगा वो इंटीग्रल के फॉर्मूले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक इंटीग्रल आपके पास बन जाएगा, मतलब जो पूरा इंटीग्रल है वो I1 प्लस I2 की फॉर्म में बनेगा, जिसमें से I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, f डैश x ओवर या तो fx की फॉर्म में बनेगा I1, और I1 बनेगा fx रेज्ड पावर n
इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म में, और दोनों का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर ए और बी हमारे पास आ जाता है तो I1 इंटीग्रल यहाँ तो एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की फॉर्म में बनेगा। अगर ये वाला होएगा तो I1 हमारे पास इस इंटीग्रल की फॉर्म में बनेगा, लेकिन अगर चौथी टाइप का इंटीग्रल होगा तो हमारे पास I1 जो है एफ एक्स रेज पर एन इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म का बनेगा। इसके बाद बात करते हैं I2 की। अब I2 जब है हमारे पास, I2 हमारे पास फिर से इंटीग्रल समथिंग कांस्टेंट टर्म, क्योंकि b की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ जाएगी, ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का बनेगा, या हमारे पास फिर से वही कांस्टेंट ओवर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का बनेगा। और बेटा जी ये वही फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे लिखी थी मैंने, ठीक है। I1 हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा और जो I2 है वो दोबारा से फर्स्ट और सेकंड टर्म की जैसे बन जाएगा, और उसको हम लोग फिर से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर 4 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। Tomorrow for the next lecture, that is exercise 7.4.